This call is now being recorded. So tomorrow, yesterday class, we have taken two extra lectures and started the unit number uh, 4, that is equilibrium and beam. In that, we have started the equilibrium, and I am sorry due to the power supply problem, our lecture is hampered, but we will try to recap whatever we have done yesterday, and today we will solve some problems. So let's join fast. Say your friends to join fast. Yesterday we have seen the equilibrium and uh, their objective learning outcomes. Also, we have seen the relevance of the subject or the unit uh, uh, where the balancing is required for the buildings and the machineries. We have seen all this, and then the impact of this subject later on and prerequisite of the subjects we have seen in yesterday class. Also, we seen what is the equilibrium. The equilibrium is nothing but when a number of forces on a body and which keep the body in rest condition is said to be in equilibrium. Or you can say that if the net force acting on a body is zero, then you can say that the body is in equilibrium. Okay, so that's we have started yesterday, and you've seen also the equilibrium. What is the equilibrium? Equilibrium is nothing but the force which balances the resultant force, that is forces acting on the body, the resultant force opposite to the resultant body, the equilibrium. Equilibrium is nothing but it make a body in equilibrium. तो कल हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम वो है कि जो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखता है, स्टैटिक कंडीशन में रखता है, और फोर्सेस एक दूसरे को आपस में बैलेंस करते हैं, और उस पर नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है. दैट इज द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है कि जो रिजल्टेंट हमारा फोर्सेस की वजह से आता है और उसके अपोजिट जो फोर्स है वो बैलेंस करता है रिजल्टेंट को, तो इक्विलिब्रियम में रखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम it is in opposite in direction of resultant, and it is a its magnitude is same as the resultant, and it is collinear with the resultant. All these things we have seen yesterday class, and also the analytic condition of equilibrium you see for the coplanar concurrent force system. Also, we have seen for the coplanar non-concurrent force system. Also, yesterday we have seen the free body and free body diagram. Free body, yani the body is free from all the surrounding, and just we will represent the forces only on the body. That is called as the free force, free body. And when we will prepare a diagram, it shows only forces. It called as free body diagram. जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था, ball resting on ground, the ball, the self weight, and then the reaction, normal reaction from the ground. You are just shown at a point this, and this is nothing but your free body diagram for resting on the ground. Then another example is in ball hanging from smooth vertical surface. That also we have seen. So yeah, this ball is hanging with the string. So in string there is tension,
and there is a reaction from the wall that is on the wall and the self weight of the ball. These three forces are acting. When we draw the free body diagram, so this is the free body diagram for the this ball hanging from the wall. We have seen yesterday how to draw the FBD. FBD is nothing but free from all the surrounding, only the forces we are showing, and that is called as free body diagram. Also, we have seen the free body diagram of ladder in yesterday class, how to the self weight of the ladder is acting at the center, then the reaction from the support and the friction force of the wall F2 and R2 we are representing. Here at the bottom where the wall is resting on the ground, there is the friction force F1 and then reaction R1 from the ground. So all these forces acting, and we have drawn the free body diagram for the same. Okay, so this is nothing but a BD of the if you represent the free body diagram of the forces. Okay, this is nothing but you can do the or draw the free body diagram. Then we seen the what is the we have seen yesterday the Lami's theorem. We have seen yesterday the Lami's theorem. What is the Lami's theorem? If there is a forces acting on a point are in equilibrium, each forces will be proportional to the sine of angle between other two forces. तो जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि फोर्स अगर मैं F1 लेता हूँ, F4 F1 जैसी that is nothing but Q, तो Q के अपोजिट जो फोर्स है P और R है that is F2 and F3 है. तो अगर मैं लामीज थ्योरम अगर बोलूँ तो यहाँ पर Q के अपोजिट में दो एंगल है, तो एंगल कौन सा है that is gamma. So if three forces acting at a point, एक पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो each force will be proportional to the sine of angle between other two forces. तो F1 का साइन ऑफ एंगल अदर टू फोर्सेस का एंगल क्या है? गामा है, साइन गामा. That is angle POR. You can see here the angle is making angle POR. Is making an angle POR here है ना, for the force F1 that is opposite to the forces that is acting from opposite to the Q force that is F1 force. तो साइन ऑफ गामा है written. Then F2 फोर्स उसके अपोजिट में जो एंगल क्या बन रहे हैं, दो फोर्सेस है Q और R है, तो Q और R एंगल क्या बना रहे हैं, तो बीटा बना रहे हैं, तो इसलिए F2 डिवाइड बाय साइन बीटा. इसी तरह F3 तीसरा फोर्स है और वो कौन सा एंगल बना रहा है, दैट इज बिगिन अल्फा साइन अल्फा. तो F3 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर F3 अपॉन क्या आ जाएगा, इट विल बी द साइन ऑफ अल्फा. ओके, तो दैट इज नथिंग बट लामीज थ्योरम. क्या है लामीज थ्योरम? अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो ईच फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है P इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल साइन बीटा. तो आप यहाँ पर देखेंगे P फोर्स कहाँ है, ये P फोर्स है F2 है ना. F2 के अपोजिट में जो दो फोर्सेस एंगल बना रहे हैं QOR, तो QOR कौन सा एंगल बना रहे हैं, बीटा. तो साइन ऑफ दैट विल बी साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसी तरह हम देखेंगे Q is proportional to the angle made by P and R. So that angle made by P and R is sine of gamma. So Q upon sine of gamma. And then R is proportional to the sine of the angle between Q and R. And Q and R जो angle बना रहे हैं वो बना रहे हैं Q and P sorry जो angle बना रहे हैं that is alpha. So here Q and P they are making the that is R sin alpha. So therefore the what is Lami's theorem? तो अगर आप Lami's theorem बोलेंगे तो this is the Lami's theorem. That's P upon sin beta is equal to Q upon sin gamma R upon sin alpha.
this is nothing but the Lami's theorem in our case. तो समझ में आ गया. इसी तरह अगर forces हैं तो Lami's theorem you can say the P is proportional to sine of angle opposite to forces Q and R. Q is proportional to the opposite angle made by the P and R. R is the proportional to the opposite angle made by the P and Q. So all these we can see in here, and you can say that this is the Lami's theorem. Also, the theorem is applicable only if the body is in equilibrium. The conditions, this is the limitation of this force. The theorem is not applicable for parallel non-concurrent force system. So it is only applicable for the concurrent force system and for three forces. So this theorem is not applicable for more or less than three forces, concurrent forces. The theorem is applicable only the concurrent forces, but only three forces, not less than three, not more than three. And the theorem is not applicable for non-coplanar forces. ऐसे forces जो एक प्लेन में नहीं है उसके लिए भी applicable नहीं है. हम लोगों ने देखा equilibrium is always equal in magnitude, opposite in direction, and collinear to the resultant. That is called as equilibrium. तो कल हम लोग ने equilibrium अच्छा से देखा था और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था. तो इफ F1 F2 दो फोर्सेस उनका रिजल्टेंट R है तो अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड R का इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, कोलिनियर टू रिजल्टेंट रहेगा. ये ध्यान में रखना है. और इक्विलिब्रियम के जो कंडीशंस है वो देखा हमने. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज रिजल्टेंट फोर्स, अपोजिट इन डायरेक्शन टू रिजल्टेंट फोर्स, कोलिनियर विद द रिजल्टेंट फोर्स. दिस इज नथिंग बट equilibrium. Then we have seen yesterday condition of equilibrium. The conditions of equilibrium, so we have seen what is the condition of conditions of equilibrium. What are the conditions of equilibrium? Equilibrium conditions. That is, if the concurrent force system is there, then summation of Fx is equal to 0. Summation of Fy is equal to 0. And if non-concurrent force system, yani parallel force system, or no, unlike parallel, non-concurrent force system hai, so there is moment also. So that is summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0, and summation of moment, that is m, is equal to 0. Because in equilibrium condition, it means that the net force, the resultant force, is nothing but 0, or it is maybe balanced by the. So in concurrent force system, the condition of equilibrium is summation of Fx is equal to 0 and summation of Fy is equal to 0. And non-concurrent force system, the summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equal to 0, and summation of m is equal to 0. This condition of equilibrium we have seen yesterday also. Here you can see for coplanar concurrent force system, two conditions are there, and for coplanar non-concurrent force system, three conditions are there. Conditions of equilibrium, you should know that, and you can, from this resultant equation, you can easily draw these conditions of equilibrium. Okay. All free body diagram, Lami's theorem we are discussing. Now we will solve the one example here. Example number 1. There is a weight of 1.25 kilonewton. So 1.25 kilonewton means 1250 Newton, you can say, or 1.25 kilonewton. Now here the weight is acting here, that is W, which is given as 1.25 kilonewton, and it is attached to two ropes as shown in figure. Calculate the tension in the ropes. तो यहाँ पर आप देखें कि दो रोप हैं, एक तो A के पास अटैच है, तो आप देखेंगे इसका डायरेक्शन that is we will denote the T1, and this at B if I will denote the T2. So in these two ropes there is tension, okay, and W, the weight tension is due to the weight W, that is 1.25 kilonewton. Now you have to find out the
T1 and T2 in this example. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फोर्सेस रहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आपका सराउंडिंग्स नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फोर्स हमारा डाउनवर्ड लोड इज 1.25 किलोमीटर, ये पहला हो गया। ओके, देन टेंशन T1, अगर मैं बनाऊं तो इस तरह, दैट इज T1, और फिर टेंशन T2, सॉरी, if I draw the tension T2, you can see the tension T2 will be like this. This is T2, and then we have to find out the tension T1 हमको नहीं मालूम है, ये मालूम करना है। T2 हमको नहीं मालूम है, ये भी मालूम करना है हमको। ठीक है, तो अब हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने के बाद अब सबसे मेन जो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो हमारा सबसे पहले हमको एंगल निकालना है। और यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, और तीनों फोर्स कहाँ कहाँ पर मीट हो रहे हैं, पॉइंट सी पर। तो कौन सा फोर्स सिस्टम हो गया, ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम हो गया, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्योंकि ये एक प्लेन है तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, कोप्लेनर भी हो गया। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए लामीज थ्योरम हम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या है, अगर हम लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, अब मैं बोलता हूँ एंगल्स। तो अब यहाँ पर देखिए, तो एक ट्रायंगल में ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। दिस ट्रायंगल इज मेकिंग ट्रायंगल ए से ABC, और ये कितने डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल के जो इंटरनल जितने एंगल है वो टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 के। तो 180 इज इक्वल टू, है ना, पहला ट्रायंगल CAB अगर हम लेते हैं तो इट इज द एडिशन ऑफ ट्रायंगल एंगल CAB प्लस इट इज द एंगल ऑफ angle CBA plus it is addition of angle BCA। और इन शॉर्ट अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब यहाँ पर आप देखिए एंगल A कितना है हमारा, 35 है ना। ए पे जो एंगल होगा 35, बी पे एंगल कितना है हमारा, बी पर एंगल है हमारा 55। सी एंगल हमको मालूम है क्या, एंगल सी नहीं मालूम है, एंगल सी मालूम करना है। तो आप अगर एडिशन आप करते हो तो यहाँ पर ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। एंगल सी हमको नहीं मालूम है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो व्हाट विल बी द एंगल सी। तो अब मैं एंगल सी एक तरफ लिखता हूँ, आई विल राइट एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, अब ये दोनों का एडिशन है ना, तो 35 प्लस 55, इसको ऐड करेंगे तो 5501 90, देन 516 and 3 is 90, है ना, वेरी गुड। तो 180 माइनस 90, तो एंगल सी में कौन सा एंगल आएगा बेटा, इट इज 180 माइनस 90 इज 90। तो यहाँ पर एंगल सी हमारा निकल गया। फ्री बॉडी डायग्राम में हम यहाँ पर एंगल बना देंगे, तो कितना एंगल डिग्री हमारा मिला, ये 90 डिग्री है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कितना, 90 डिग्री। ओके, अब अभी भी मेरे 2 एंगल बाकी है ना। कौन कौन से एंगल बाकी है, देखो, एक तो ये एंगल बाकी है, दूसरा
ये एंगल बाकी है, और ये दोनों एंगल तो रेक्टेंगल है यानी 90 डिग्री है, और ये पूरा एंगल हमारा चाहिए अगर हमको लामीज थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा एंगल दोनों तरफ का मुझको चाहिए, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, मुझको ये 90 तो मालूम हो गया, है ना। अब यहाँ पर ट्रायंगल में अगर आप यहाँ सी पॉइंट पर देखते हैं, देख रहे हैं सी पॉइंट, अब मैं यहाँ पर वापस से लाइन बनाता हूँ, है ना। तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, है ना। अब ये कितना आएगा एंगल? अब ये 90 है, ये 55 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 35 आ जाएगा। अब ये वापस से यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। यहाँ वापस से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर ये 35 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये एंगल क्या 55 हो जाएगा? 55, वेरी गुड। तो यहाँ पर 55 आएगा, तो ये एंगल 55 हो गया। तो कैसे हो जाएगा अभी? तो यहाँ ये जो अगर राइट साइड का एंगल मैं लूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 55 प्लस ये 90 डिग्री, है ना। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा राइट साइड में? डब्ल्यू टी टू के बने जाएंगे 90 प्लस 55। 135 कर रहा है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, रीचेक and remove the HCl to the screen. Mute yourself. Abhishek, yes sir mute yourself. और कौन है जो आवाज कर रहा है? सिर्फ आप अनम्यूट करें अगर आपको कुछ आंसर देना है, अदरवाइज यू शुड म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए 55 प्लस 90 कितना हो गया बेटा? ये तो 5 एज इट इज, 90 प्लस 5 इज 14, तो 145 डिग्री। दूसरा एंगल भी हमारा आ गया, है ना। अब एंगल क्या बाकी रह गया? ये वाला बाकी रह गया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये, आप वापस से यहाँ फिगर में आइए, तो ये 90 डिग्री है, ओके, 35 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा अपना? ये 55 आएगा। अगेन यहाँ पे 90 डिग्री है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूँ तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा? अगेन इट विल कम 35। तो यहाँ पर 35, तो दिस एंगल विल बी 35 प्लस 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा? इट विल बी 35 प्लस 90 यानी 5, 9 प्लस 3 12, 125 125 डिग्री। तो अब तीनों एंगल हमारे निकल गए। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? कोई भी फिगर देगी तो हमको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर हमको सब एंगल निकालना है। अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ यूजिंग लामीज थ्योरम। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजिंग 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 लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या है? लामीज थ्योरम ये है कि जो भी अगर तीन फोर्स कंकरेंट फोर्स सिस्टम एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो उनका जो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है अगर अदर टू फोर्सेस के एंगल से। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ T1 सबसे पहले, तो T1 किससे प्रोपोर्शनल है? T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू W। तो यहाँ पर एंगल कौन सा है? यू कैन सी हियर एंगल, विच एंगल इज देयर? 145। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ दीज टू फोर्सेस इज साइन 145 डिग्री। समझ में आया? अब इसी तरह अगर हम T2 को लामीज थ्योरम में लिखेंगे तो T2 इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है हमारा? T1 से बन रहा है और W से बन रहा है। तो ये एंगल कितना है? T1 और W कौन सा एंगल बना रहे हैं? 125 डिग्री। या T2 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन 125 डिग्री। उसके बाद क्या बचता है? W हमारा।
W कितना है हमारा 1.25 किलोन्यूटन डिवाइड बाय साइन ऑफ, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, T1 और T2 बना रहे हैं ना, एक तो T1 आपको बना रहा है और ये T2 एंगल बना रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी आ गया लिमिट लामीज थ्योरम से। तो हम अब यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं T1 और T2 की वैल्यू। कैसे मालूम करेंगे, विल टेक फर्स्ट टू टर्म, अगर मैं लूँ फर्स्ट टू टर्म तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा T1 अपॉन साइन ऑफ 145 इज इक्वल टू, अब यहाँ T2 नोन है क्या मेरे को, तो मैं ये ले सकता हूँ क्या T2, नहीं, मैं प्रोपोर्शनली लेंगे T1 से ये W अपॉन साइन 90, क्योंकि यहाँ पर W मुझको मालूम है, तो W क्या है हमारा 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। अब हम साइन 145 भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे, साइन 90 भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। W की वैल्यू 1.25 ये गिवन है एग्जांपल में, W की वैल्यू क्या है ये हमको गिवन है एग्जांपल में, वैल्यू ऑफ W इज गिवन। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट T1 इज इक्वल टू, मैं T1 को अपनी तरफ रखता हूँ, क्या हो जाएगा 1.25 इंटू ये साइन ऑफ 145 इधर ऊपर आ जाएगा, तो साइन ऑफ 145 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री, 1.25 तो एज इट इज रहेगा। साइन ऑफ 145 डिग्री आप कैलकुलेटर पे मालूम करो कितना आता है, तो अगर हम साइन ऑफ 145 डिग्री अगर कैलकुलेटर में मालूम करते हैं तो कितना आता है, तो इनटू साइन ऑफ 145 इज 0.573, ओके। इसी तरह साइन ऑफ 90 हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर में, तो साइन ऑफ 90 इज 1, तो यहाँ पर 1 में लिखूंगा, तो सिंपली T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, yes we have to divide by this, multiply this and divide by 1, कोई भी टर्म डिवाइड बाय 1 तो वो टर्म रहती, तो 1.25 इंटू 0.573 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो गई तो 0.716 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू आप T1 की वैल्यू आ गई 0.716 किलो। समझ में आया, ये लामीज थ्योरम यूज कर। अब यहाँ पर हमको T2 नहीं मालूम है, नाउ मैं आई विल टेक दिस टू टर्म प्रोपोर्शनलिटी T2 विद द W, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा T2 साइन अपॉन साइन ऑफ कितना है 125 डिग्री है ना, यहाँ पर देखिए साइन ऑफ 125 T2 अपॉन साइन ऑफ 125 इज इक्वल टू 1.25 दैट इज W अपॉन साइन ऑफ 90। अब यहाँ पर भी इसी तरह मैं लिखूंगा, सब टर्म को T2 की टर्म में लिखूं, T2 एक तरफ ले लिया मैं, T2 इज इक्वल टू 1.25 इंटू साइन ऑफ 125 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 हमने देखा इट इज 1, तो 1.25 इंटू साइन ऑफ 125 कैलकुलेटर में मालूम कीजिए, आपको पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठना है,
एमई के लेक्चर में कभी भी, हाँ। तो साइन ऑफ 125 इज 0.819. I will write here 0.819, which is divided by sine of 90 is 1. So just we have to multiply with 1.25 into 0.89. You will get the value of tension, that is tension in the T2, that rope T2. That is coming answer 1.02 kilonewton. So this is nothing but how you have to solve, you have to find out the tension or forces in the rope, and that is nothing but this is your final answer. You will get the this value is 1.02 kilogram. So what we get T1, the tension in rope T1 we have get here 0.716 kilonewton, and tension in T2 we have get, the answer is you have to write down 1.02 kilonewton. So this is nothing but your answer. So now we'll check this answer with the final result. You can get this, you can compare. You will do the rounding here, you will get the same value. Okay, so likewise you have to solve the examples using the Lami's theorem. We will see further more example in tomorrow class. Today we have to solve it, but due to the unavoidable circumstances, to the net power supply issue, we hampered our lecture, but inshallah we will solve it tomorrow. Thank you for joining. So we will stop. You should join lecture on time regularly. Okay, and you have another class. You don't have class, then you will continue. You have another class today. This first lecture is there. If there is no lecture, then we will continue. If there is no lecture, we will continue this. Shall we continue? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो. चौथा लेक्चर नहीं है ना कोई किसी का भी? सर केमिस्ट्री का लेक्चर है लेकिन लिंक नहीं आई अभी तक. कौन लेता है केमिस्ट्री का लेक्चर? फारूक, डॉक्टर फारूक सर. फारूक सर की तबीयत सही नहीं है उन्होंने लिखा ना. बोले अगर बेटर होगी तो 12 बजे से लेंगे. लेकिन कोई लिंक तो नहीं आई ना. नो सर. कंटिन्यू करते हैं ना. अगर लिंक आएगी तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे. चलेगा? ओके सर. We will continue our lecture and we will solve another example
एंड दैट विल बी बेटर फॉर अस ना। ऑलरेडी कनेक्शन के इशू और इसके इशू से हमसे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल से पहला वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जब तक सर भी आ जाएंगे बहुत करके, नहीं तो कम से कम हमारा एक एग्जांपल और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो विल सॉल्व दिस एग्जांपल। यहाँ पर देखिए कि एक बॉल है ना, बॉल है या स्पेयर है, जो भी बोलिए आप, यहाँ पर स्पेयर दिया हुआ है। ये डायमीटर है इसका 350 mm। कितना डायमीटर है? 350 mm। और वेट कितना है उसका? 750 किलोमीटर है। तो W यहाँ पे दिया हुआ है हमको, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे W इज गिवन, W इज 750 किलोमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना। And the W is given and calculate the reaction at point of contact। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है? देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे तो ये है A, और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर B है ना। ये B पर एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा A पर है। A और B पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वहां पर जो रिएक्शन है हमको वो मालूम करना है, रिएक्शन मालूम करना है। तो रिएक्शन क्या क्या है हमारा? दैट इज RA। हम देखेंगे अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ डॉटेड, तो ये हमारा डॉटेड लाइन मैंने ज्वाइन किया। तो रिएक्शन कभी भी 90 डिग्री में रहेगा अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो। दूसरा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूंगा B से, तो हमारी जो फोर्सेस है वो यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट होंगे, है ना। तो ये तो वेट रहेगा, और यहाँ B पर जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो इस तरह आएगा, ओके। तो अगर मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाता हूँ तो ये किस तरह बन जाएगा? एक तो ये रिएक्शन A जो कि हॉरिजॉन्टल पे है, फिर दूसरा रिएक्शन B जो कि 10 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये फोर्स 10 डिग्री का है, तो ये भी इसके नॉर्मल रहेगा। तो हम जब उसको आगे मीट करेंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? 10 डिग्री बनाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो किस तरह बनेगा? आप देखिए कि यहाँ पर मैं पॉइंट लिया, ये मेरा पॉइंट O है, पॉइंट O पे रिएक्शन RA अगर मैं ड्रॉ करूँ तो रिएक्शन RA इस तरफ जाएगा, ये रिएक्शन RA है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री फ्रॉम ऑल द सराउंडिंग। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल द सराउंडिंग। और ये जो रिएक्शन RB है वो इस तरह आपका क्वाड्रेंट में बनाता हूँ अगर, तो डॉटेड लाइन से ये क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका रिएक्शन आएगा, ये भी डॉटेड लाइन, और ये आएगा RB, और जो वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज W। W की वैल्यू हमको दी हुई है, और RA जो है राइट साइड ऑलरेडी हम लोग ने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर भी कितने फोर्सेस हैं? एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, यानी ये भी कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो मैं कंकरेंट लिखता हूँ यहाँ, एक प्लेन में, यानी कौन से? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, और कितने फोर्स है? 3 फोर्सेस है। एक तो W है, एक तो रिएक्शन है RA, और एक तीसरा जो रिएक्शन RB है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आर ए, आर बी और डब्ल्यू ये हमारे रिएक्शन बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एंगल देखेंगे पहले, यहाँ लामीज थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, क्यों? क्योंकि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में पहली कंडीशन, कंकरेंट फोर्स सिस्टम में दूसरी कंडीशन, और तीन फोर्सेस है एक पॉइंट पर, ये तीसरी कंडीशन, तीन फोर्सेस है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो लामीज थ्योरम यू कैन यूज। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यूजिंग लामीज थ्योरम यू कैन सॉल्व दिस। ओके, अब यहाँ पर हमको एंगल्स निकालना है। तो अब देखिए कि ये थीटा है, ये 10 डिग्री है ना। ये जो एंगल है ये कितना है? 10 डिग्री है। तो मैं अगर आरबी को एक्सटेंड करूंगा तो ये इससे भी वर्टिकल से कितना डिग्री बनाएगा? 10 डिग्री बनाएगा डेफिनेटली। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल, एक एक एंगल हमको मालूम पड़े, मैं नाम देता हूँ एंगल, ये एंगल है θ1, ये एंगल को मैं नाम देता हूँ θ2, और ये एंगल जो है इसको मैं नाम देता हूँ θ3, जो सबसे बड़ा दिख रहा है। अब लामीज थ्योरम सॉल्व करने के लिए, है ना, फोर्स के अपोजिट का जो एंगल है वो प्रोपोर्शनल रहता है लामीज थ्योरम में। लेकिन यहाँ पर हमको एंगल मालूम है क्या? नहीं मालूम। एंगल हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो यहाँ पर मैं अगर θ1 निकालूं तो मैं पहले निकालता हूँ θ1, पहले वी कैलकुलेट द एंगल। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ θ1, यू कैन सी हियर θ1 इज इक्वल टू, अब ये जो है ये कितना है यहाँ पर, ये आर बी इसके वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 10 डिग्री बना रहा है। तो θ1 क्या हो गया हमारा? 90 प्लस 10। तो θ1 की वैल्यू क्या हो गई? 90 प्लस 10 इज नथिंग बट 100। ओके, अब θ2 में मालूम करूं तो θ2 तो राइट एंगल है आर ए से, तो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब क्या है? θ3 हमको मालूम करना है। θ3 अगर मैं निकालूं तो आप देखिए कि पहले यहाँ तो जो है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 बोले तो 90 में पहले लिख दूं, सॉरी, यहाँ पर आई विल राइट द 90, okay, I will write here 90 प्लस, अब यहाँ पर ये एंगल, ये जो एंगल है, अब ये कितना हो जाएगा? ये 10 है, तो ये 90 माइनस 10, तो 90 माइनस 10 बोले तो कितना हो गया? 90 माइनस 10 बोले तो 80 हो गया। तो θ3 कितना हो गई? 90 प्लस 80 मीन्स 170 डिग्री। तो हर एंगल हम लोग डिग्री में शो करते हैं, तो वी कैन राइट ऑन द डिग्री। समझ में आएगा? तो अब तीनों एंगल हम लोग ने एफबीडी डायग्राम से मालूम कर लिया। इट्स वेरी सिंपल। नाउ यू कैन यूज द लामीज थ्योरम। क्या है लामीज थ्योरम? यहाँ पर इसके हिसाब से मैं लामीज थ्योरम अगर लिखता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन उसके अपोजिट का एंगल क्या है? साइन ऑफ θ3, साइन ऑफ θ3 इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय साइन, उसका अपोजिट का एंगल क्या है? θ2 है, आर बी साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू, अब कौन सा बचा हमारा? वेट, W इट इज ऑलरेडी गिवन,
W अपॉन उसके अपोजिट का एंगल क्या है, साइन ऑफ थीटा 1। तो यूजिंग लामीज थ्योरम हम प्रोपोर्शनल मालूम कर लिए। अब हमको W तो मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? W इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 750 किलो न्यूटन। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RA एंड RB, रिएक्शन मालूम करना है। तो मैं पहले लेता हूँ ये दो टर्म लेता हूँ, क्योंकि W मुझको मालूम है, साइन का थीटा 3 और थीटा 1 भी मुझको मालूम है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले RA अपॉन साइन ऑफ थीटा 3 कितना है, थीटा 3 इज 170। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन ऑफ 170 is equal to W is 750. So directly I will write down the 750 kilonewton divided by साइन ऑफ थीटा 1। थीटा 1 कितना है हमारा, थीटा 1 हम लोग ने पहले निकाला था, इट इज 100 है ना, यू कैन सी हियर दिस इज द थीटा 1। वी फाइंड आउट दैट थीटा 1 इज 100। आई विल राइट आउट साइन ऑफ 100। हमको क्या मालूम करना है, RA। तो मैं RA एक तरफ रखता हूँ, बाकी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 इंटू साइन ऑफ 170 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100। अब यहां पर मैं वैल्यूज लिखूंगा, 750 डिवाइडेड बाय इंटू साइन ऑफ 170। आप देखेंगे कैलकुलेटर में तो क्या आएगा, साइन ऑफ 170, साइन ऑफ 170 इज इक्वल टू, इट इज 0.173। so it is 0.173 divided by साइन ऑफ 100। अगेन कैलकुलेटर में हमको मालूम करना पड़ेगा, साइन ऑफ 100 इज इक्वल टू 0.98। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.98। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 0.173 divided by 0.98 is equal to 0.175 into 750. So reaction at RA is nothing but it is equal to, after calculation, RA is equal to 131.75 kilonewton. Similarly, now I will take the relation between the RB and W. ये दोनों इक्वेशन का रिलेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो RB हमको मालूम नहीं है। अगेन आई विल राइट टू हियर RB इज इक्वल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू हम लोगों ने मालूम किया पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी थीटा 2? थीटा 2 इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 is equal to 750, that is the value of W, divided by sine of 100, that is the value of theta 1, W upon theta 1. Now you can easily find out, therefore RB, you can directly find out RB is equal to 750 into, मैं directly यहाँ लिखता हूँ, sine of 90 is nothing but 1, I will write down here 1, divided by sine of 100. साइन ऑफ 100 कितना है आपका, साइन ऑफ 100 इज 0.98, तो 0.98। तो 750 को मैं अगर 0.98 से डिवाइड कर देता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू। तो 750 डिवाइडेड बाय 0.98, the reaction at B, that is RB, is equal to 765 kilonewton.
765 kilonewton. So this is the reaction you can find out using the Lami's theorem. It is very simple. So you can see the values is nearby what we have calculated. है ना? So that's why you can find out using the Lami's theorem. So you can see that 131.75. You can round it. तो अगर राउंड करेंगे तो 1 RA क्या हो जाएगा आपका 131.75 is approximately it is equal to 132 kilonewton. Similarly, RB is equal to 750 divided by 0.98. I will write exact value sign of 100. So 750 divided by answer it will give 761. Sorry, it is 760.894 is there. That is 765 761.56. If you write up, then it will be 762 kilonewton. Okay, this is sine 100 is nothing but 0.9848. 0.9 exact value if you write 0.9848, then this value will be 761.56. So likewise, you can find out the value of RA and RB. समझ में आ गया सब? So this is by using the Lami's theorem, you can solve the example. कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, we will stop here. So we are fulfilled our target as your chemistry lecture is not there. Now we'll solve another example next class. If you have any problem, you can ask with me. Any doubt? Otherwise, we will leave. कोई डाउट है आपको? समझ में आ गया सबको? फहद, अदनान, कोई डाउट है? फहद, अदनान, अदील, फरहान, कोई डाउट है कि आपको? There is no doubt, then we will stop here.